the RG Kaur rape and murder case trial, which in fact has commenced already in a special court in Kolkata on November 11th, and it is day 2 of this trial. Let's take you through the details of the proceedings that were held on day 1. Proceedings were held in camera at the Court of Additional District in Sessions Judge Anirban Das. During the trial, the victim's father and neighbor recorded their witness statements on camera in the judge's private room. According to the report, the victim's father said that he has seen many pictures of Sanjay Roy in various media. However, he saw the accused face to face for the first time. In this situation, he could not match the face of the accused to face with the picture shown in media. Meanwhile, according to the reports, the father of the victim, doctor, collapsed while testifying yesterday. Tears came to his eyes. He gave his speech in a choked voice and also looked at the place designated for the accused and in fact broke down during the cross-examination. Main accused, Sanjay Roy, a Kolkata police civic volunteer arrested in connection with the case, was produced before Additional District and Sessions Judge Anirban Das as the trial began. While coming out of the court, this is, remember ladies and gentlemen, the second time that Roy has told the reporters that he is being framed by police officials, including the then Kolkata Police Commissioner, Vineet Goyal. In fact, he said, and I quote, "I have not committed the rape and murder." When asked on who committed the crime, he has said, "They know everything." The "they" here referring to the senior Kolkata police officials. Earlier on November 4th, the court had framed charges against Sanjay Roy under Section 64. Rape, punishable with rigorous imprisonment of life term and not less than 10 years. 66, which is punishment for causing death for resulting in a persistent vegetative state. And 103/1, murder, punishable with death or imprisonment for life of the Bharatiya Nyaya Sanhita. Now, Roy that day too had claimed innocence in the court. Sanjay Roy was arrested by the Kolkata police on August 10th, which is the day after this entire case had come to light on August 9th. And this woman's body was found. She's a postgraduate trainee diploma doctor whose body was found inside the seminar hall of the RG Kaur Hospital. The CBI, which took over the probe following Calcutta High Court's order in its 45-page charge sheet, submitted to the court and listed 11 pieces of evidence from forensic to documentary, holding Roy the sole accused in this crime. CBI claimed the victim's blood was found on Roy's jeans and shoes. Furthermore, Roy's hair and a Bluetooth earpiece synced with his cell phone were found from the crime scene, as per the reports given by the IE. So this is the particular details that we bring to you, the proceedings of day 1. The neighbor of the victim and the father of the victim, they are the two who have recorded their testimonies. And right now joining me on this broadcast is Shouvik Sarkar, and this is from Bengal itself. Shouvik ji, very good morning to you. पहले तो आप हमें ये बताइए कि जो day 1 की proceedings रही हैं, उसमें से फर्स्टली हम एक बहुत ही अद्भुत चीज़ देखते हैं कि जो विक्टिम के पिताजी हैं वो बाहर आके, वो जब कोर्ट में पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि संजय रॉय के जो पिक्चर्स मीडिया में आए थे और वो जो यहाँ पे है, इसमें कोई मेल नहीं मिल रहा है मेरे को. दैट्स द स्टेटमेंट ही इज़ गिवन. ये चीज़ उन्होंने बोली है. क्या आप हमें इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दे सकते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया? देखिए, अभी जो आरजी कौर का जो मामला है, ये कल से ट्रायल रन शुरू हुआ है और टोटल 128 गवाह है. और पहली दिन कल जो विक्टिम है, विक्टिम का जो पिता जिसने फर्स्ट कंप्लेन किया था, उसका जो बयान लिया गया है. और ऐसे 128 गवाह है, सबका बयान लिया जाएगा. अगले 3 महीने में सीबीआई कोशिश कर रहा है ये जो केस है, ये केस सॉल्व करने के लिए. और कल पहली दिन जो तिलोत्तमा का जो फादर है, उसने बाहर आके बोला है कि संजय का जो पिक्चर उसने पहले देखा था मीडिया में जो प्रकाश हुआ था, और कल का संजय का जो सामने आया था, तो उसका पिक्चर में मील नहीं खा रहा है. ऐसा किस लिए बोला है, उसका जो परफेक्ट उत्तर उसके पिता से कुछ भी नहीं हम लोग को पता चला है. लेकिन ये जो ट्रायल जो चलेगा, ये जो 3 महीने का जो ट्रायल है, सीबीआई कोशिश कर रहा है कि 3 महीने में ये जो इन्वेस्टिगेशन टोटल कंप्लीट किया जाए. ये हर दिन संजय को सियालदा कोर्ट में लिया जाएगा और उधर ही उसका जो बयान, वो बयान इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आरजी कौर मामला है, आरजी कौर मामला में
टोटल जो जितना भी गवाह है उस सब गवाह को सीबीआई की तरफ से डे बाई डे उधर लेके आएगा और उधर जो गवाह कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन कल जो लड़की का जो पिता है वो कल फर्स्ट उसने जो कंप्लेनर था और कल गवाह दिया है, लेकिन उसका जो कहना है संजय राय के संजय राय ने जो किया है ये उसका जो पिक्चर पहले दिन मीडिया में दिखा गया था और कल का संजय राय का पिक्चर मेल नहीं खा रहा है। और फिर से कल संजय राय ने जो जब उसका प्रोडक्शन हुआ उसने बोला था कि वो पहले भी बोल चुका है कि कलकत्ता पुलिस उसको फंसाया जा रहा है और उसने स्पेसिफिक नाम लिया है जो विनीत गोयल जी है, उसने उसको फंसाया जा रहा है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, गवाह लिया जा रहा है और सीबीआई कोशिश कर रहा है कि अगले 3 महीने के अंदर ये जो इन्वेस्टिगेशन ये कंप्लीट किया जाए। शोविक यहाँ पे मेरे को और एक सवाल आपसे करना है, जो आपने अभी बात बोली है उसी बारे में। ये एक बहुत ही संदेहजनक टिप्पणी दी है जो अक्यूज्ड है संजय रॉय। वो पिछली बार भी जब उनका कोर्ट अपीयरेंस हुआ था वो ये बोल रहे हैं कि उनको फ्रेम किया गया है, और ये हम जो स्टेटमेंट सुन रहे हैं उनकी, ये स्टेटमेंट हम देख रहे हैं कि अब इन द प्रेजेंट टाइम्स, ओनली इन द रिसेंट पास्ट ऐसी स्टेटमेंट्स वो कह रहे हैं। क्योंकि जब पहले की तरफ में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी इस पूरे केस में, उन्होंने कुछ नहीं कहा था। उन्होंने कहा था हाँ ठीक है आप इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, सच बाहर आ जाएगा। पर हम अब देखते हैं कि जो ट्रायल जब जारी हुआ है उनके पिछले कोर्ट अपीयरेंस में भी और इस वाले कोर्ट अपीयरेंस में भी, दोनों में उन्होंने ये बहुत मतलब एम्फोसाइज करके कहा है कि मेरे को फ्रेम किया गया है। एंड नॉट जस्ट फ्रेम किया गया है, उन्होंने कोलकाता पुलिस पे चार्जेस लगाए हैं। उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक कोलकाता पुलिस, सीनियर कोलकाता ऑफिशियल्स एंड द पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, तब के पुलिस कमिश्नर, कोलकाता पुलिस कमिश्नर, उनकी इन्वॉल्वमेंट है। इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है और सीबीआई की तरफ से क्या कोई प्रूफ है इस पूरे रिमार्क के बारे में? चीजें क्योंकि देखिए अभी तक तो ट्रायल चल रहा है, सीबीआई की तरफ से ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। लेकिन संजय ने पहले जब हादसा हुआ था, संजय जब अरेस्ट हुआ था, तब संजय ने ऐसा कोई बात नहीं कही थी। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि कल और उसके पहले भी संजय जब कोर्ट में आया था उसने बोला था कि कलकत्ता पुलिस कलकत्ता पुलिस की तरफ से उसको फंसाया जा रहा है। और कल भी उसने विनीत गोयल जी का नाम लिया है और उधर बोला है कि उसने अनकोट नाम लिया है विनीत गोयल जी का कि कलकत्ता पुलिस और उसको फेम कर रहा है, मतलब उसने कोई क्राइम कोई खून वगैरह नहीं किया है, लेकिन उसको फंसाया जा रहा है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। 3 महीने के अंदर सीबीआई कोशिश कर रहा है। टोटल 128 गवाह है, सभी को गवाह डे बाई डे वो लोग ले रहे हैं। और जो संजय जो अभी तक जो मूल एक्यूज है जिसको अरेस्ट किया गया है उसको भी सियालदा कोर्ट में लेके जा रहा है सीबीआई। अभी ट्रायल डे बाई डे जब आएगा उसके बाद ही पता चलेगा टोटल जो हादसा हुआ है इसके साथ और कौन कौन कोई भी अगर है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सीबीआई जल्दी कर रहा है कि 3 महीने के अंदर ये जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट वो कंप्लीट करने के लिए। मेरी आखिरी सवाल आपसे ये रहेगी कि आज डे 2 में हमें क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या क्या होने वाला है इस प्रोसीडिंग्स में, कौन कौन लोग टेस्टिमनीज देंगे, इसके बारे में आपको कोई आइडिया है? अगर हमें बता पाएँ तो। नहीं देखिए, तो ये तो अभी तो ये ट्रायल चल रहा है और आपको पहले भी बोल चुका हूँ मैं, 128 गवाह है और डे बाई डे कोशिश कर रहा है कि जितना जल्दी हो सके सबको सियालदा कोर्ट में लेके आ रहा है। और जो संजय को भी हर दिन मतलब ये जो 3 महीने के अंदर सीबीआई को कोशिश कर रहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए, और संजय को भी लेके जाएगा सियालदा कोर्ट में। कुछ ही देर बाद ही ये ट्रायल शुरू होगा फिर से। लेकिन कौन कौन गवाह है एग्जैक्ट ऐसे अभी तो बताना नहीं चाहिए क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन पार्ट है।